Hello friends, I Astha welcome you all to Swing Trading. Today we are going to discuss another success story Kahani Kamyabi Ki of Sanjeev Bikhchandani, who is the founder of InfoEdge. So let's get started. InfoEdge is an internet company. It's been founded in 1995. Founder is Sanjeev Bikhchandani. Headquarter Noida, Uttar Pradesh. Hitesh Oberoi is a CEO. Product is Naukri.com, Jeevansathi.com, 99acres.com and Siksha.com. Net sales is 1098 crore. Sales is 335 crore. Net profit 280 crore. Cash reserve is 1500 crore. And recruitment business is total 70% of the revenue. In 1997, InfoEdge started Naukri.com and it's been leading provider of online recruitment, and another was matrimonial classified service in India. It's also involved company for company investment and acquisition. Its business has been divided into four parts. So let's see what are the four businesses. First, Naukri.com. Naukri.com is a leading job service provider in India. Second, Jeevansathi.com, leading matrimonial classified service. Third, 99acres.com, real estate classified division. And Siksha.com, which is an online education service. InfoEdge hold a major stakes in Zomato. Zomato is an Indian restaurant aggregator and food delivering startup. Second, Merit Nation, which provide study material for students from kindergarten to class 12th. Fourth, PolicyBazaar.com, which is an online insurance comparison site. And fourth one is Ustra, which provide grooming product for men and women. Now we are going to see the revenue model of InfoEdge. First, Naukri. A major part of revenue from Naukri.com is right from recruiters, for which services such as database access, job listing, and candidate screening is done. But the small part of revenue from Naukri.com originates from candidate for which services such as resume building, resume listing is done. Second, Jeevansathi.com. As we know, it's a matrimonial service, so listing is free on the site, but once you match with someone, you need to pay a value added service such as message request, meeting request, etc. 99acres.com. It derives a major source of revenue from advertising, listing of rental and on-field properties and broking. Fourth, Siksha.com. It derives a revenue from branding, advertising of education institution, and it's also into regeneration business. Now we will going to see the life of Sanjeev Bikhchandani. Sanjeev was born and brought up in Delhi. He did his bachelor in economics from St. Stephen's College. He did his MBA from IIM Ahmedabad. He considered himself a visionary and he always on outlook for entrepreneur and startup to invest in. He belongs to a middle class family. फैमिली में हमेशा से ही उनको नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया गया. हर फैमिली की तरह उनकी फैमिली भी बच्चों की पढ़ाई और उसके बाद नौकरी की सपने देखते थे. लेकिन संजीव बिख्तंजानी जी को एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा. शुरुआत में उन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, लेकिन लेट 20s के एज में उन्होंने जॉब छोड़ दी और एंटरप्रेन्योर में आगे बढ़े. इसके साथ ही वह और उनके दोस्त दोनों ने 2000 के इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के साथ इस जर्नी की शुरुआत की. शुरुआत में उन्होंने सैलरी सर्विस, डेटाबेस, कंसल्टिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग में 7 साल तक काम किया और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए बिजनेस में. इस 7 साल में उन्होंने बहुत सारे स्किल्स और समय के साथ आगे बढ़ना भी सीख लिया था. इसी के साथ Naukri.com का जन्म हुआ. नौकरी उस टाइम एक स्मॉल आइडिया और स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ
बढ़ रहा था। उन्हीं दिनों संजीव बिखचंदानी जी ने इंटरनेट को पहली बार देखा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटी एशिया एग्जीबिशन लगा था। वहीं उन्होंने इंटरनेट के बारे में जान के उन्हें और भी जागरूकता बढ़ी, जैसे इंटरनेट के फंक्शंस, कनेक्टिविटी इत्यादि कैसे काम करते हैं। तभी उन्होंने एक आइडिया सोचा। जॉब वैकेंसी के लिए लोग प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर की हेल्प लेते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा डेटाबेस कलेक्ट करें जो जॉब वैकेंसी के लिए हो और इसे naukri.com पे डाल दें। ऐसा करते हुए उन्होंने 1000 जॉब वैकेंसी पोस्ट डाले naukri.com पे। धीरे धीरे नौकरी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। आगे चल के बहुत सारी कंपनीज ने नौकरी पे जॉब लिस्टिंग और जॉब पोस्टिंग के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया और इन जॉब लिस्टिंग में naukri.com कुछ पैसे भी चार्ज करने लगा, जैसे 350 पर लिस्टिंग पर पोस्टिंग। और पहले ही साल 2.5 लाख का सेल्स naukri.com ने किया और सेकेंड ईयर सेल्स 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। 1998 तक इन्फोएज एक लार्ज इंटरनेट कंपनी बन चुका था और नौकरी इनका मेन फोकस था। साल 2002 में कंपनी को ब्रेक मिला और कंपनी ने वेंचर कैपिटल रेस किया आईसीआईसीआई वेंचर में, और कंपनी ने $1.7 मिलियन वेंचर रेस किया जो 15% ऑफ द कंपनी था। तभी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो चुका था और नौकरी ने अपने इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को कम करना स्टार्ट कर दिया। इसके 2 साल तक कंपनी लॉस में रहा, लेकिन बाद में कंपनी ने फिर से तेज़ी पकड़ी और 35% ऑफ द सेल्स को बेच दिया। इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और हर साल कंपनी डबल टर्नओवर के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और फाइनली 2006 में कंपनी लिस्टेड हो गया इंडिया में। और कंपनी ने और भी बहुत सारे सेक्टर्स और डाइवर्सिटीफाई में अपने बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे मैट्रिमोनियल क्लासिफिकेशन, रियल एस्टेट क्लासिफिकेशन, एडुकेशन और एक्सटर्नल स्टार्टअप भी किया, जैसे जोमेटो, मेरिट नेशन, हैप्पीली अनमैरिड, पॉलिसी बाजार, माई डेटा एक्सेट्रा। आज के डेट में इन्फोएज इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सेक्टर बन चुका है। ये थी आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जाते जाते मैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ अंत करना चाहती हूँ। हर छोटी बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। इसी बदलाव से कामयाबी की ओर बढ़े संजीव बिखचंदानी। अगर आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइड में दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।